कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सिंध का दारुल खिलाफा, हमारा कराची, जहां बसता है पूरा पाकिस्तान, जहां हर इतवार भी त्योहार होता है और हर त्योहार मनाया जाता है बावकार, जैसे कि ईद उल अजहा। एक दिन के अंदर लाखों जानवर कुर्बान कर दिए गए और 3 दिनों तक ये कुर्बानी का अमल जारी रहा। लेकिन इस बार कुछ खास था। आलाइशों को फटने से पहले उठा लिया गया। रोड, रास्ते, गली मोहल्ले, फुटपाथ और ग्राउंड घंटों में साफ कर दिए गए। ये सब इसलिए ही मुमकिन हो सका कि आपके मुंतखब नुमाइंदे और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान हमा वक्त फील्ड में मौजूद रहे। अमला आलाइशें उठाने में मसरूफ था और अवाम ईद की खुशियों में मगन। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब सिद्दीकी और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह ने गली गली जाकर लोगों के मसाइल पूछे, ईद मिली और सफाई अमले की जाफिशानी पर इनके साथ रहे। कराची अब बदल रहा है, जिसकी वजह है आप अवाम, जिन्होंने अपने बल्दियाती नुमाइंदों और इदारों पर यकीन रखा और साथ दिया, जिसका नतीजा साफ सुथरा कराची निकला। शुक्रिया कराची। To work for a cleaner, healthier and greener society. और यहाँ पे मैं अगेन जो स्टेज पे बैठे हुए मेहमान हैं उनका नाम लेना चाहूँगी और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। सरवर एहसन सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज पर। दिल मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पीपल्स पार्टी, करमुल्ला वकासी जनरल सेक्रेटरी साउथ पीपल्स पार्टी, नजम शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, वो तो हमारे साथ हैं ही। अहमद शाह साहब के लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए जो कि सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के। एंड अलॉन्ग विद दैट डेप्यूटी मेयर कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चीफ गेस्ट जो हमारे साथ ऑलरेडी हैं, तो उनका भी शुक्रिया तहे दिल से। एंड नाउ इट इज़ टाइम to call our respectable managing director Sayyid Imtiaz Ali Shah to come upon the stage for a welcome speech. May I please request him to join us? Please give a warm round of applause for the managing director Sindh Solid Waste Management Board. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Local Government Town Planning Sindh Nasir Hussain Shah Sahab, हमारे रेस्पेक्टेड बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची, एंड हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर कराची, और अहमद अली शाह साहब हमारे ACS लोकल गवर्नमेंट से, नजम शाह साहब, एंड ऑल अपने चाइनीज़ जो हमारी मिस खदीजा CEO हैं और मिस पैंग एंड अदर चाइनीज़ एंड ऑल हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much for your time to here. We are gathered for inauguration of this new Karachi, and subsequently we want to distribute the appreciation award ceremony, awards to all operation staff, Chinese, who performed the excellent job in lifting the offals, during the Eid al-Adha days. So this was excellent job. We will distribute the award ceremony to all. In all that, I would like to give you a little silent features of this zone Karachi. So I would like to zone new Karachi. I would like to share the data, what type of vehicles, how many vehicles and what type of they will provide to us. So actually award contract was on contract was awarded on 9th May 2022, and first zone started in Nazimabad May 2022, and second zone and third zone, which is the Gulbarg and the Yaqatabad, started in September 2022. Actual date of the start of the new Karachi zone was April 2023, 4 months late starting. So these reasons of the late was new Karachi zone was the import problems, custom clearance and dollar inflation. So accordingly, as per our data, the total of the residential 70%, which will be 394 tons,
and the commercial 15% would be 84 ton, and bulk waste it's 15% would be 84 tons. Total will 562 tons per day of the New Karachi will be lifted. And road type and length, the primary is 43 kilometers, 8%, and the secondary road is 54%, which is 54 roads and 10%. And the streets, which is 164 and 31%, which is lanes 260, which is 50%. Around total 523 total number of roads, and 100% would be total of the New Karachi zone. So machinery and equipments which the company will provide us, the competitors 5 meter cubics bins would be 9 out of total 29. So will competitors of the 13 meter cubics would be 3 out of 31, and competitors of 25 meters would be 6 out of 20, and mini tippers and 3-wheelers which 1.5 meter cubic would be 38, and total out of 145. So mini tippers would be 58, and arm rollers and the containers would be 4 out of 17, and PCTS would be 12 out of 37, and arm rollers for PTCS would be 8 out of 22, and the vacuum cleaner would be 1 out of 6, and the sprinklers total on the whole district would be is 1, and hand carts would be 185 out of 515, and hand carts of the commercial 71 would out of 234, and the bins and containers 0.8 meter cubic garbage bins would be 490 out of 1485, and 0.5 meter cubic garbage bins for commercial 262, and it would be out of 859. So 240 liter garbage bins commercial would be 375, which is around out of 1500. So 3 meter cubic arm rollers would be 22 out of 86. So total sanitation staff manual sweeping would be 683 out of 1844 total. These are the silent features of this zone, New Karachi. So we will going to start from today, and inshallah we have a very we are late, no doubt, but in through different reasons. So now I pushed them hard and give them a tough time. Then finally we have to inaugurate. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, our respectable Managing Director of Sindh Solid Waste Management Board, who shared his thoughts. And there are some Chinese officials and friends whom I'd like to name, and I'd like to thank them. और उनके अलावा जो हैं हमारे साथ स्टेज पे जो कुछ रह गए हैं मजीद मेहमान, उनका नाम मैं अगेन लेना चाहूँगी. मोहम्मद यूसुफ टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया. एंड देयर आर सम चाइनीज ऑफिशियल्स, द CEOs of the companies. I'd like to name them and thank them for their continuous efforts and contributions. Mr. Liu Tao from Gansu Construction. Ladies and gentlemen, please a warm applause for them. And Ms. Khatija from Gansu Penguang Central. Mr. Pang from Hangzhou Malina Kimari West. Thanks again for their precious time, all the guests who have taken out their precious time with us. And now it is time to invite our guest of honor, Barrister Murtaza Wahab, to share his thoughts on the stage. May I please request Barrister Murtaza Wahab, newly elected Mayor, Karachi. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काबिल एहतराम नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मेरे भाई सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर, नजम शाह साहब, अहमद शाह साहब, मसरूर एहसन साहब, दिल मोहम्मद साहब, इम्तियाज़ शाह साहब, हमारे टाउन के चेयरमैन न्यू कराची के मोहम्मद यूसुफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे दोस्त, मीडिया के साथी, अस्सलाम वालेकुम. नासिर हुसैन शाह साहब ने आज से चंद माह पहले ये नारा लगाया था, अब होगा कराची साफ. और सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो ऐलान किया, आपने जो वादा किया कराची शहर की बेहतरी के हवाले से, सफाई की सूरत हाल के हवाले से,
میں بحیثیت میئر کراچی کے، بحیثیت شہری کے تمام کراچی والوں کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو سپورٹ پرووائڈ کی ہے ہمیں. وی آر گریٹفل سر، کیونکہ اس سپورٹ کی وجہ سے شہر کے اندر بڑے عرصے بعد بہتری نظر آ رہی ہے، جس کا واضح ثبوت جو حالیہ عید الاضحیٰ کی تقاریب ہوئی تھی شہر بھر کے اندر، ان 3 دنوں میں بلکہ 5 دنوں میں جو آلائشوں کا آپریشن کراچی کے تمام ٹاؤنز کے اندر سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ نے کیا، جس کی مکمل معاونت سر آپ نے کی، سرپرستی آپ نے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر بھر سے ہمیں کہیں سے بھی شکایت موصول نہیں ہوئی آلائشوں کے حوالے سے. اور جہاں میں آپ کا شکر گزار ہوں سر، میں کے ایم سی کی انتظامیہ کا، سالڈ ویسٹ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، میں اپنے ٹاؤن کے تمام چیئرمین کا بھی شکر گزار ہوں. یہاں پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان تمام 25 ٹاؤنز میں جہاں پر پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، ہم تمام لوگوں نے کراچی کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کام کیا. اور ایک واضح بہتری اور واضح فرق کراچی شہر میں شہریوں کو دیکھنے میں آیا. اور میں سر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ بلا تفریق ہمیں شہر کراچی کی خدمت کرنی ہے، جس کا بیڑا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اور آپ نے اٹھایا ہے، اور آپ کی ٹیم کا حصہ بن کے میں اور سلمان عبداللہ مراد اور ہم تمام لوگ کام کریں. انشاءاللہ یہ وعدہ ہے میرا کہ اسی طریقے سے اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے تاکہ شہر کراچی کی اور زیادہ بہتر انداز سے خدمت کی جا سکے. میں سمجھتا ہوں سر کہ کراچی والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ اختیارات کی بات نہ کی جائے، انتظامات کی بات کی جائے. کراچی والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ حالات میں بہتری ہو، اور جس طریقے سے آپ نے کراچی شہر کے لیے بجٹ میں منصوبے اپروو کرائے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں واضح بہتری کراچی شہر میں ہوگا. میں چونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہوں سر، میں صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو کاوشیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور کام کیا جا رہا ہے. سر یہ آپ کی سپورٹ تھی، پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی کہ شارع نور جہاں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا، اس کے اوپر کام شروع کیا گیا اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور آئندہ چند ماہ میں سر انشاءاللہ اس کام کو مکمل کر دیا جائے گا. صرف سڑک کو سندھ حکومت نہیں بنا رہی، سڑک کے ساتھ نالوں کو بنایا جا رہا ہے، ڈرینیج کو بنایا جا رہا ہے، اس کی سیوریج کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. شارع ہمایوں ہو، شارع عالمگیر ہو، برا حال تھا سر، الحمدللہ اس وقت وہاں پر کام ہو رہا ہے اور کام کمپلیٹ کیا جائے گا. آئندہ چند ماہ میں کام کو مکمل کر کے شہریوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا انشاءاللہ. مینا بازار سر جو بالکل ہی ایک آئیکونک جگہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کے لیے، اس مینا بازار کی جگہ پر آپ نے انڈر پاس بنانے کی منظوری دی، سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں منظوری کی، اس کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے. آئندہ چند ماہ میں انشاءاللہ بلکہ چند دنوں میں کام کا آغاز کر دیا جائے گا. اور کام کے آغاز کے بعد کام کو ٹارگٹ ہے ہمارا کہ 1 سال میں ایک سال میں اس کام کو مکمل کریں تاکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کی یہ خدمت کی جا سکے. سر بختیاری یوتھ سینٹر کے لیے میں آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں. جو لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں، جن کا انٹر بورڈ جانا ہوتا تھا، وہ ایک زمانے میں وہاں پر کرکٹ کھیلتے تھے. مسرور احسن صاحب بھی اس علاقے میں رہتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے یہ مدعا رکھا، سندھ حکومت کے سامنے مدعا رکھا، اور میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، کہ جنہوں نے بجٹ میں میگا میں اس اسکیم کو اپروو کیا. اور اب ایک بہترین، جس طرح لیاری میں ہم نے ایک ملٹی پرپز سپورٹس فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ بختیاری یوتھ سینٹر کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ ایک بڑا کام کرنے جا رہی ہے. سر ایک زمانہ تھا جب آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں داخل ہوتے تھے آپ کو کچرا نظر آتا تھا، آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں، کچرا آپ کو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک زمانہ تھا آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں مین شاہراہیں نظر آتی تھی، آج الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے انڈر پاسز کو ریہیبلیٹیٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کیا. آج تمام کے تمام انڈر پاسز جو ہیں وہ بہتر کنڈیشن میں، اور وہاں پر کسی مشکل کا ہمیں سامنا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو سڑک مینا بازار کی طرف جاتی تھی، جو
स्टेडियम की तरफ से जब हम आते थे रोड तहस नहस थी, बुरा हाल था। वहां पर हमने एक नया टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है सिंध हुकूमत ने। उस सड़क की तामीर भी बल्दिया उज़्मा कराची ने करके दी, आपकी सपोर्ट की वजह से करके दी। 5 स्टार चुरंगी हो, लंडी कोतल की रोड हो, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर जो सड़क आपकी फेडरल बी एरिया गुलबर्ग से होते हुए आती थी यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए, उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने डेवलपमेंट की, नाले को बनाया। अब सड़क की तामीर चल रही है, इंशाल्लाह उसको भी आइंदा चंद माह में कंप्लीट करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम की खिदमत को और मजीद बेहतर बनाया जा सके। सर अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम का एक देरीना मसला है और मुश्किलात का शिकार है, मैं इस अज़म का इजहार करता हूं आपके सामने कि उसको इंशाल्लाह आपके ताउन से उसकी ओपीडी और इमरजेंसी को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों में ठीक करने का हमने फैसला किया और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम हम स्टार्ट कर देंगे। जो पैगाम मैं देना चाहता हूं है सर कि ये शहर हम सबका है, ये शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, ये शहर जमात इस्लामी का भी है, ये शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, MQM का भी है, नून लीग का भी है, JUI का भी है, ये हर कराची वाले का शहर है। हम चाहते हैं इस तफरीक की सियासत को खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है सर, पीपल्स पार्टी चाहती है, बिलावल साहब चाहते हैं, जरदारी साहब चाहते हैं कि मोहब्बत की सियासत की जाए, काम की सियासत की जाए, तरक्की की सियासत की जाए। और हमने पिछले चंद सालों में अपने किरदार से, अपने अमाल से इस बात का मुजाहिरा किया है कि बिला तफरीक कराची के हर इलाके में काम किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम को वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा मीडिया के तवज्जुह से कि ये पैगाम हमारा पीपल्स पार्टी का हर कराची वाले को जाए, हर सियासी जमात को जाए, हर सियासी शख्सियत को जाए। मेरे साथ यूसुफ साहब बैठे, मैं यूसुफ साहब आपकी तरफ इत्तेहाद का, मोहब्बत का, दोस्ती का इजहार करता हूं कि मिलकर काम करें। ये अगस्त का महीना है सर, 14 अगस्त पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। 14 अगस्त की मार्फत से हम फैसला करें कि हम धड़ों में नहीं बटेंगे, हम मिलकर इस शहर की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर यकजुबा होकर सेम पेज पर होकर काम करेंगे, एक दूसरे के मसाइल को भी समझेंगे और एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, तो मैं समझता हूं कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कराची शहर की तरक्की को रोक सके। मैं इस बात का खुला इजहार करता हूं कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे, बल्दिया उज़्मा के दरवाजे, मेयर के दरवाजे, डिप्टी मेयर के दरवाजे, वजीर बल्दियात के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए। मैं चाहता हूं कि आज जो एक अच्छी तकरीब मुनक्किद हुई है, 14 अगस्त भी आने को है, हम इस अज़म का मुजाहिरा करें कि हम कराची की तरक्की में एक साथ हैं। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं? क्या हम सूबा सिंध की तरक्की में एक दूसरे के साथ हैं? क्या हम पाकिस्तान की तरक्की में एक दूसरे के साथ हैं? इंशाअल्लाह बिलावल पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी और एक एक पाकिस्तानी की इंशाअल्लाह खिदमत करेगी। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम मुर्ज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, उस्ताद मसरूर एहसन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल, नजम शाह साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, इम्तियाज़ शाह साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल मुराद साहब, अब्दुल मजीद साहब, शाहीना साहिबा, जरीन साहिबा,
मैडम खतीजा एंड मिस्टर पेंग और सब भी हमारे काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन महफिल, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये आज का जो प्रोग्राम है, वो जो एक सेक्टर पूरे कराची में रहता था, आज उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और अब आप कह सकते हैं कि पूरे कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो जिस तरह मुर्जा साहब ने कहा कि जो एक हमारा स्लोगन है कि अब होगा साफ कराची, तो इंशाल्लाह अब ये जब प्रॉपर तरीके से पूरे कराची में ये काम शुरू हो चुका है, बहुत सारे इलाकों में ये एक सेक्टर रहता था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर केएमसी, डीएमसीज और जो फिर टाउन अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सब के साथ मिलकर अब होगा। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि वैसे तो मीडिया पे जहाँ लोग किस्से सुनाते रहते हैं कि जी कराची की रोडें जो हैं उनको धोया जाता था, साफ किया जाता था, तो मेरी अपने मीडिया के दोस्तों से ये एक गुजारिश भी है और छोटी सी शिकायत भी है कि यहाँ पे तो काफ़ी अरसे से रोड दोबारा साफ हो रहे हैं और अच्छी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मॉडर्नाइज मशीनरी है, उसके थ्रू हो रहे हैं, लेकिन वो कभी भी मेरे ख्याल में फोकस नहीं किया जाता। यही शिकायत हमें रहती है कि आप ज़रूर जहाँ पे हमारी कोताहियाँ हैं उनको ज़रूर पॉइंट आउट करें, लेकिन जो अच्छाई हो रही है उसको ज़रूर दिखाया करें। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आप ज़रूर सुबह को और फिर रात को देर से भी अगर देखेंगे तो कराची के बेशतर हिस्सों में जितनी भी सड़कें हैं उनको धोया जाता है, इस मशीनरी के ज़रिए साफ़ किया जाता है, जिससे एक बेहतर माहौल जो है वो आप देख रहे होंगे। और अब जब ये वाला सेक्टर भी शुरू हो जाएगा तो जो कचरे से हम कहते थे कि जान छुड़ाएंगे, तो इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। फिर ये इसको और मॉडर्नाइज भी किया गया है, जिसके तहत जो जीटीएस और फिर लैंडफिल साइट पे फिर दीगर आगे भी जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तरक्याती काम मिसाल के तौर पर पूरे सिंध में बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद जो हमारे चेयरमैन साहब का विज़न है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सीएम सिंध और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा रही। और आपने देखा कि इस जो साल जून था, 30 जून तक सैकड़ों स्कीमें हमारी पूरे सिंध में कंप्लीट हुई हैं। या भी जिस तरह मुर्जा साहब कराची के बारे में बता रहे थे, या स्पेशल सिर्फ अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम हैं तो यहाँ की स्कीमें उन्होंने आपको गिनवाई, तो यहाँ पे अरबों रुपए की डेवलपमेंट जो है वो की गई। बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं और बहुत सारी जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। जाहिर है चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत थी, सीएम साहब और हम सब लोग, हमारी पार्टी के जो यहाँ पे लीडरशिप है, मसरूर साहब हैं, दिल मुराद और मजीद और सब, सरदार खान बैठे हैं, अशरफ साहब बैठे हैं और हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ साहब का बहुत अहम रोल रहा और उन्होंने पूरी कराची और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बहुत सी स्कीमें यहाँ पे तरक्याती हुई, उसमें डॉक्टर आसिम साहब ने अहम रोल अदा किया, लीडरशिप से रिक्वेस्ट की और फिर वो फंड्स भी आए और यहाँ पे काम शुरू हुआ। हम सब को मिलकर काम करना है क्योंकि कराची में बहुत मसाइल हैं, और जिस तरह आज हमारे जमात इस्लामी के चेयरमैन जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और हम मुर्जा साहब ने भी कहा है और हम तो वैसे भी कहते हैं, हाफिज नईम साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमने तो यही चाहा है और चाहते भी हैं और इंशाल्लाह होगा भी
کہ سب مل کر کام کریں گے، کیونکہ جو ایشوز ہیں کراچی کے وہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے. الیکشنز ہم نے اب لڑ لی، کیونکہ الیکشن لڑی جاتی ہے، لیکن بعد میں سیاست جو ہے، جو خدمت کی سیاست ہے، اب ہم نے وہ کرنی ہے، اور وہ انشاءاللہ مل کر کریں گے، اور تاکہ کراچی میں بہتری آ سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاک چائنا دوستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. شکریہ. جی پلیز بولیں. جی دیکھیں، وہ ڈسٹرکٹ کونسلز کا ایریا تھا اور اب وہ ایک کارپوریشن میں آ گئے ہیں، تو ان کے ایریاز کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے. تو وہ جو میونسپل کارپوریشن جو بنی ہیں وہ آلریڈی انکلوڈڈ تھیں. تو جو علاقے جو یونین کونسلز اس میں نہیں آ رہی تھیں اب وہ اس میں آئیں گی. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ آج جس طرح یہ علاقہ اس میں شامل ہوا، یہ رہتا تھا، اب تمام کراچی جو ہے اس میں آئے گا، اور جہاں جہاں ان یو سیز میں کام شروع نہیں ہوا تھا وہاں پہ بھی اب کام انشاءاللہ شروع کر دیں گے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ خان صاحب انتہائی جھوٹ بولتے ہیں، اور جس طرح کی وہ بات اب کر رہے ہیں یہ وہ سیاست ہے، وہ نفرت کی جو انہوں نے بیج بویا جوانوں کے ذہنوں میں، بچیوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، انتہا پسندی کا، تشدد کا، بدتمیزی کا، یہ اس کا شاخسانہ تھا. اب خان صاحب جو یہ الزام لگاتے ہیں، دیکھیں آج دنیا جو ہے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور یہ جو سزا ملی ہے یا جو ایکشن ہوا ہے یہ وہ ویڈیو کلپس ہیں، وہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں، اور پھر جو خان صاحب کے اپنے لوگ تھے ان کے بیانات ہیں، جو ان کے خاص لوگ تھے، خاص ورکر تھے، جن میں کوئی چیف منسٹر رہا ہے، کوئی گورنر رہا ہے، کوئی فیڈرل منسٹر رہا ہے، کوئی پروونشل منسٹر رہا ہے. یہ ان کے بیانات تھے کہ خان صاحب نے ہمیں اکسایا، اور یہ لوگ اس دن جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس میں ملوث ہیں. کسی کو بھی اس طرح سزا نہیں دی گئی کہ وہ کہیں گھر بیٹھا ہے یا ملک سے باہر ہے تو، اور نہ اس کی کسی کو اکسانے کی کوئی چیز سامنے آئی اور کسی کو سزا دی جا رہی ہے. یہ سب لوگ اس تشدد میں موجود تھے جو اس دن واقعات ہوئے، اور اس کا آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی امپیکٹ کیا آیا. اس میں اس دن سب سے زیادہ خوشی انڈیا میں منائی گئی جب ہمارے جنا ہاؤس پر حملہ ہوا، ہمارے JHQ پر حملہ ہوا، ہماری دیگر جو شہداء تھے جو ہمارے لیے باعث تکریم ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا کہ ہمارے بچے جو ہیں یتیم ہونے سے بچیں. ان کی کیسی کیسی بے توقیری کی گئی، ان کی جو وہاں پہ تنصیبات تھیں، ان کی تصاویر تھیں یا جو مونومنٹس بنائے ہوئے تھے، تو یہ اس کی سزا ہے. اور خان صاحب کو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی. مجھے کبھی کوئی ایسا ملزم، ظاہر ہے مجرم بعد میں بنتا ہے جب سزا اس پہ ثابت ہو، نہیں ملا جس کو اتنی رعایت دی گئی کہ کورٹیں ان سے کہہ رہی ہیں گڈ ٹو سی یو، اور ان سے بیانات ان کی مرضی سے لیے جا رہے ہیں، جو ٹائم وہ دیں، جو ڈیٹ وہ دیں، اور پھر ان کے کیسز سالہ سال جو ہیں وہ ان کو ڈھیل دے دی گئی. آپ فارن فنڈنگ کیس دیکھ لیں، آپ یہ جو ابھی توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، دیگر اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں. تو اگر خان صاحب کو یہ سزا ہوئی ہے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، تو ظاہر ہے قانون کے مطابق یہ سزا ہوئی ہے، لیکن بہت دیر سے ہوئی ہے. یہ ایکشن اگر پہلے ہو جاتا
تو 9 मई کا वाकया भी ना होता, और जो हमारी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर दुश्मन ममालिक में जिस तरह हम पर तनकीद हुई वो ना होती। जी देखें, अगर कामरान टिसोरी साहब बहुत अच्छी तरह गवर्नर के यहाँ पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और अगर ये मेरी ज़ाती राय है, अगर वो वज़ीर आज़म निगरां भी बनते हैं तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अभी तक कोई नाम जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर तय नहीं हुआ। नाम फ्लोट ज़रूर हुए हैं, और मेरे ख्याल में MQM की तरफ से ही बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए, निगरां के लिए शोएब सिद्दीकी साहब का नाम ले लिया गया। अब वज़ीर आज़म निगरां के लिए कामरान टिसोरी साहब का नाम दिया गया है, तो बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ ये 2 नाम आए हैं। बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई नाम नहीं आए हतमी तौर पर, लेकिन मशावरत होगी, और जो लोग भी होंगे बेहतर ही होगा। और हम चाहते हैं कि निगरां सेटअप वो हो जो पॉलिटिकल हो और आराम से इलेक्शन कराए, और जो टेन्योर है 3 माह या 2 माह जो भी मुकर्रर होते हैं वो इलेक्शन हो, और लोग जिसको भी हक दें वो आके हुकूमत करें। कम से कम मेरे नाम पर गौर नहीं किया जा रहा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह 2023 में पूरे पाकिस्तान में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी, बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। सिंध में अल्लाह के हुक्म से, और जो हमारा विजन है चेयरमैन का बेहतरी भलाई का, उसकी वजह से हम स्वीप करेंगे। आप सब ये बहुत सारे अरस्तुओं, सुकरात और की सुनते होंगे मीडिया पे आके कि जी सिंध गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्म किया, 15 साल से ही इनकी हुकूमत है, लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, और ये हाथ में अगर कोई कंगन हो या कोई चीज हो तो इसके लिए आईने की जरूरत नहीं होती, नजर आता है। 2008 में तो बीबी शहीद हुई, इमोशन थे, जज्बात का वोट था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पे सीटें मिली। 2013 और 2018 में तमाम मुश्किलात के बावजूद आप सबके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी के साथ कैसा रवैया रखा गया वफाकी हुकूमतों की तरफ से, काबिले इज्जत और एहतराम अदालतों की तरफ से, और बहुत सारे इदारों की तरफ से। हमारे कई लोग जेलों में रहे और वहां से इलेक्शन लड़े, लेकिन 2013 में 2008 से ज्यादा नशिस्तें ली हमने। 2018 में 2013 से नशिस्तें ज्यादा ली हमने सिंध में। तो ये वो परफॉर्मेंस है जिस पे हम लोग काम करते हैं, और उसकी एक और जिंदा मिसाल ये जियाला जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे मुर्जा वहाब बैठा है, ये सलमान अब्दुल्ला मुराद बैठा है, और भी हमारे कई दोस्त बैठे हैं, कि कराची में सबसे ज्यादा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, और हमारे डायरेक्ट इलेक्शन में 100 से ज्यादा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मिले। ये वो खिदमत है जो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को नजर नहीं आती, और फिर वो तनकीद करते रहते हैं। लेकिन कम से कम आज जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है, कराची में जितने रोड धुलते हैं वो कम से कम जरूर दिखा दीजिएगा। जहां खराबियां हैं वो 10 दफा दिखाएं, एक दफा छोटा सा क्लिप आ जाए कि भाई ये रोड धुल रहे हैं, और सारे रोड धुल रहे हैं, प्लीज इस पे देखिए। लेकिन ये इलेक्शन का भाई का बात थी कि ये बड़ा इत्तेहाद बन रहा है, ये इत्तेहाद पहले भी बनते रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला या जो भी कारकुन होगा, जिसके पास टिकट होगी पीपल्स पार्टी की, वो बिल्कुल जीतेगा, चाहे सामने कोई पहाड़ हो, कितने भी बड़े जितने मर्जिया
यहाँ पे ग्रुप बन जाएं, इत्तेहाद बन जाएं, हमने पहले भी फेस की हैं और 2023 में भी फेस करेंगे। जी भुट्टो, जी बिलावल। देखिए, जमायत इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है और उनका वजूद है, उनको भी मैंडेट मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अगर कराची में किसी को ज्यादा मैंडेट मिला है तो वो जमायत इस्लामी है। उसको 86 के करीब उनके लोग जीत के आए हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। और जाहिर है जहाँ पे कमी होगी, कुछ होगा तो एहतजाज होते रहते हैं। तो इस पे अभी हमारे चेयरमैन मेरे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें बहुत उनका इज्जत है, जो टाउन के चेयरमैन है, वो इस एहतजाज को संभाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली समझते हैं कि इश्यूज क्या हैं। और अगर गैर कानूनी कनेक्शन काटने से हाइड्रेंट पर जो कार्रवाई हो रही है उससे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जो गैर कानूनी हाइड्रेंट है वो पानी वहीं का ही चोरी होता है। अगर वहां पे मेयर साहब कोई एक्शन कर रहे हैं तो हमारे जमायत इस्लामी के दोस्तों को, MQM के दोस्तों को, PTI के दोस्तों को, दीगर लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जमायत इस्लामी भी दर्द रखती है, जो लोगों को तकालीफ है हमें वो पॉइंट आउट करें, मेयर साहब को बताएं कि यहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट चल रहा है, ये इलीगल कनेक्शन है। अगर उस पर एक्शन ना करें मेयर साहब तो फिर तो जाहिर है उनका गिला बनता है। मैं नहीं समझता कि एहतजाज बड़ी माजरत के साथ जो ये एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ वही करते हैं जो इलीगल पानी का कारोबार कर रहे हैं। बाकी जिनको तकलीफ है पानी से, जहाँ पानी नहीं पहुंचता, उनसे जाहिर है हम माजरत भी करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश और ये जो एक्शन है मेयर साहब का, ये इसी वजह से है कि उन लोगों को जो उनका हक है, जो पानी है, वो मिले। बहुत शुक्रिया।
साइड पे। और जो